Beatles Ashram, also known as Chaurasi Kutia, is an ashram close to North Indian city of Rishikesh in the state of Uttarakhand. During the 1960s and 1970s, as the International Academy of Meditation, it was the training center for students of Maheshri Mahesh Yogi. The ashram gained international attention between February and April 1968 when the English rock band The Beatles studied meditation there, along with celebrities such as Donovan, Mia Farrow, and Mike Love. It was the setting for the band's most productive period as songwriters, where they composed most of the songs for their self titled double album, also known as the White Album. The site was abandoned in the 1990s and reverted to the local forestry department in 2003, after which it became a popular visiting place for the fans of Beatles. Although derelict and overrun by jungle, the site was officially opened to the public in December 2015. It has since become known as the Beatles Ashram. It's a beautiful and must-see place. Do visit if in Rishikesh. Thank you. तो यहाँ के पैम्पलेट के हिसाब से 84 यह अंक हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण संख्या है। ऐसा माना जाता है इस धरती पर 84 लाख जीव प्रजातियां हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का रूप पाती हैं। What is special in this ashram? What is special in this ashram? At one point of time, it must be very, very, what to say, beautiful. People used to go there and do lot of meditation and all, I think so. Sadhvik. समझा? अभी तो खंडर हो गया है। George Harrison and that one Ringo Starr. Ringo Starr, last one, okay. But probably the fifth one also. Fifth one is for the boss. Say again? Fifth one is for the boss. Who is the boss, but? Who was the state guru? See. And the biggest one is that boss. Vince you can talk. That big one, yeah. That is so that we can around. So 150 रुपये का टिकट है यहाँ पे, लेकिन एकदम खंडर है। आप देख सकते हैं खंडर। किसी ज़माने में यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन शायद इस कमरे में सोया करते थे। साथ में ये रिंगो स्टार का है क्या? रिंगो स्टार यूज्ड टू डू, ओए ही इज डूइंग पॉटी। रिंगो स्टार इट्स नॉट रिंगो स्टार, आई थिंक इट्स समथिंग एल्स। एंड व्हाट अबाउट दिस? हु वाज सच अ बिग ड्रंकर्ड इन द ग्रुप? Satvik, who was such a big drunkard? I don't know. John Lennon, correct? So, you can see the ruins. And somebody has done such a beautiful painting here, you can see this. Awesome. That is it. Something else as well. Oh, the Strawberry Fields Forever song. अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर इसमें बाकी आगे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। महर्षि महेश योगी जी के सर्वप्रथम 1961 में इसका दौरा किया था
गंगा के किनारे स्थित इस निर्मल स्थान पर वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 14 वर्षों हेतु इसे पट्टे पे देने का अनुरोध किया। 1961 में उन्हें यह स्थल पट्टे पे मिल गया, पट्टा यानी लीज पे मिल गया, और उन्होंने यहाँ पे अपना आश्रम बनाया। अभी आश्रम तो बहुत ही विकट स्थिति में आप देख ही रहे हो। आगे चलते हैं। जिन्हें बीटल्स के विषय में जानकारी नहीं, उन्हें बताना चाहेंगे कि बीटल्स ब्रिटेन स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पश्चिमी पॉप बैंड ग्रुप था। अब यहाँ पे लाइट बहुत कम है, मैं आगे चल के बताता हूँ इसमें क्या था। इस दल के स्वस्थ सदस्य आध्यात्मिक जागृति की खोज में लगभग 60 वर्ष पूर्व भारत आए थे, और उन्होंने महर्षि योगी जी के साथ 84 कुटी में ठहरे थे। क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? हाँ, उस लास्ट वाले में जाना, सातवें किधर में? हाँ, हाँ। आगे इसमें लिखा है, आश्रम को स्थिरता प्रदान करने के पश्चात महर्षि योगी जी अपने कार्यकलापों को पश्चिमी देशों, मुख्यतः यूरोप में स्थानांतरित किया, यानी वो शिफ्ट हो गए यूरोप में। उनके जाने के पश्चात कुछ समय तक आश्रम क्रियाशील रहा, किंतु 1990 के दशक में अंततः आश्रम परित्यक्त हो गया, यानी कि destroyed means nobody was taking care since 1990 onwards. So that's where I think it became ruins. Now I think Ringo Starr, our own local Ringo Starr, is going to sing a song now. हाँ सात्विक, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे कांटे हैं, हाँ थोड़ा, कहाँ कौन से वाले आश्रम में चले गए तुम लोग? अब हम लोग यहाँ पे एक आश्रम का गाना रिकॉर्ड करें। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बोला 1990 में ये रून्स में तो नहीं आया, लेकिन लोगों ने ये आश्रम में आना छोड़ दिया। 84 कुटिया में, जिसको हम लोग बीटल्स का आश्रम भी कहते हैं। आश्रम की इमारतें शनै शनै खंडर, शनै शनै मतलब स्लोली दे बिकेम खंडर, यानी कि रून्स में हो गए वो लोग। ठीक है। लगभग 40 वर्षों के पश्चात सन 2000 के आरंभ में आश्रम की भूमि पुनः वन विभाग को दे दी गई, यानी कि ये अभी वन विभाग की भूमि है, क्योंकि पट्टा खत्म हो गया, इसलिए पुनः वन विभाग को दे दी गई है। ठीक है। यह स्थान राजाजी बाग आरक्षित वन का भाग है। सन 2015 में राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा इसे रखरखाव तथा राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से टिकट युक्त पर्यटन स्थल में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि दिस हैज बीन चेंज टू अ टिकटेड प्लेस वेयर यू हैव टू गिव द मनी एंड देन यू कैन स्टे हियर। ओके, ऑसम। Let's go to one of the caves and These structures were constructed from 1976 to 78 to accommodate sannyasis and brahmacharis for practicing their sadhana. The round stone used in them were taken from the shores of river Ganga. Now, our own Beatles is going to sing. Oh, wow, see. I think this is John Lennon who is licking his guitar. Can you see this? I think it may not be very clear, but John Lennon is licking his guitar. And let it be. Okay. Not sure who Marjo Lynn was. Apologies for my lack of knowledge, but rest in peace whoever she is. Okay. Let's go to the. ऊपर भी है, हाँ? Now what is it down? चलो. And see, attached was a toilet also, so that they can stay in the kutia, do all these things, and they had a western this thing also. And guys, we're going downstairs and we're going to show you something. No, let's see all of these, and then anyways we have to go downstairs now.
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 84 कुटियाँ हैं ऐसी, क्योंकि सब में नंबर भी लिखा है। ये नंबर 14 आ गई। सात्विक, अच्छा तेरा जर्सी भी 14 है ना, देख रहा गंदा है वो सात्विक। अरे मत जा वहाँ बेटा, दूसरा अलग है वो। पापा ये पेंटेड है। पापा ना अपस्टेयर्स भी है। हाँ सेम ही है, आजा सब में, अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स सब में, सबस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स टॉयलेट सब में है, खिड़कियाँ भी हैं सब में। अब इनको देख के लग सकता है कि इसमें कोई करोड़पति लोग ही ऐसे होंगे जो साधु बाबा इसमें किसी ज़माने में तपस्या या जो भी करते होंगे, पर दे वर ऑल करोड़पति। आई थिंक ऑल द वेस्टर्न पीपल माइट बी कमिंग हेयर। यू कैन सी द कमोड, यू कैन सी दिस वन हैज़ अ डोर एज वेल, इलेक्ट्रिक वायरिंग एज वेल। Okay, from here we can see the river Ganga. 1960 के अंतिम वर्षों से 84 कुटी आश्रम को बीटल्स आश्रम के रूप में ख्याति प्राप्ति होने लगी, यानी कि 1960 ऑनवर्ड्स दिस वाज आल्सो रिनाउंड एज बीटल्स आश्रम। सन 1961 में इस दल के सदस्य महर्षि के से भावावीत ध्यान की कला सीखने ऋषिकेश आए। उन्होंने महर्षि महेश योगी से अध्यात्म और योग की दीक्षा ली। हाँ करेक्ट, नहीं हाँ लवर्स प्लेस बन गया। और क्या इसमें सारे वो लोग आते होंगे। ये आनंद भवन और 84 कुटिया
got these cool stones. Look. Look, wood here, this one. Woodstone. Guys, woodstone. Woodstone. एकदम बेस्ट अर्ली ह्यूमंस का केयर करते हैं ना मीट का वो एकदम